Okay, so yeah, so I think we did lists and arrays last week, yeah, and we had one session only, which happened on Saturday. So that was what we were doing. Yeah, I think its screen is visible to everyone now. Okay, so let's answer that. So we saw what lists are. Lists help us. So lists are basically collection of certain data types, variables. We kind of put it all together in a container, like a place, one below the other. Anybody wants to take a rough guess of from what index does the list start from? List of. No, I'm saying the index number from where the list starts. 0. Yeah, so list starts from 0, the index starts from 0. Anybody wants to tell how would you access an element in a list? Let's say a list of name A. How would you access the element at index, let's say 3? What would you write? If you want to print a third element in the list to just see what is there in the third position, and your list name is A. We can use like print then the name of the list A and then like bold brackets and Yeah. the third element you mean. Yeah, right. Second. Oh, okay. That's absolutely correct. Who answered it? Who answered it? Yeah, Rikang. Oh, okay. Hi, Mrigank. Your voice is a bit different today, I think. Yeah, but yeah, that's absolutely correct, Mrigank. And yeah, that's how we do it. We just go about writing the list name, and then we pass in the variable which the position. And since it was third, and as we discussed, that list starts from 0. That means the index number of the third element would actually be 2, right? So very smart of you, Mridang, to actually take that also into consideration and go ahead. So these are some we discussed majorly two types of lists, mutable and immutable. Anybody wants to take a guess on what is mutable and what is immutable? So mutable is like you can change it afterwards, and immutable is like you cannot change the data afterwards. Okay, yeah, right, Mrida. Yeah, Vida, yeah, right. That is correct. So mutable is you can change the list, and immutable is wherein you cannot change. Anybody wants to take a guess of what is list by default? So when you declare a list, is it mutable by default? List of It immutable. is Yeah, it is immutable by okay. default. Lists are immutable by default. In case you want to make the list mutable, how do you declare that? Mutable list of. Yeah, exactly. So you write it like this, mutable list of. In that scenario, you can add, remove, and remove the elements. You can do my list dot add and then add little elements in it. Okay, great. So anybody wants to take a guess on how arrays are different from lists? Anybody how arrays are different from lists Arrays are mutable by default? and we can store multiple lists. Yeah, it can store multiple kind of variables, right? That can do that, and they are mutable by default. So they can store multiple items, as in that is, you can store integers, strings, all of mixed combination into arrays. Plus they are mutable by default. That means you can change the elements of an array and a particular index. But guys, can you add elements to an array that is already declared? No. No, right? Because that is not available in array. Mutable, you can change the value of a particular position that is stored, but you cannot add more elements or remove elements from an array, right? Whereas you can do that in a mutable list if you declare it as mutable list of. So these were certain limitations of array. So anything, yeah, so this table actually goes over a bit more clearly on how arrays and lists are different. So I'll just give you a gist of what's the difference.
my list, my array. So like you declare it these ways. So list is dynamic. That means you can add and remove if you make it a mutable list of. Whereas for array you cannot do that. This is how you address if you access a particular element, right? Like we did it right now. Like I asked question, you write the name of the array and then you write the index number that you want to access. Then this is how you add and remove, and in array that is not supported. And for iteration, we also discussed about iteration, right? For element in my list, what does iteration do? Anybody wants to give it a guess? What happens when you iterate over an array? It goes one by one to each element from 0 to -1, you can say. Yeah, so yeah, right, so it goes from 0 to -1. -1, why? Because it starts from 0. So like if there are 4 elements in your list, it would go 0, 1, 2, 3, because your fourth element is index number 3 because it starts from 0, right? So that is how it happens in iteration. And we discussed an example of how iteration would be what do you say, beneficial, how it would help us. Anybody wants to give a try on what example we discussed on how iteration, we did something to calculate some stuff? Anybody remembers that? We iterated over a list of marks, I guess. Yeah, it was upon the grades. Okay. Anybody else who has like what do you say, some real world example that you think you could do while iterating over lists, that might have just come to your mind when you was thinking? Anybody wants to give an example of how you can use iteration in lists? कुछ सोचा किसी ने कभी, like after we learned arrays की yeah we can use it here maybe? Just randomly, I just want to hear what you guys have been thinking or whatever. Boat, okay. Wait, again, who is this guy with what's your actual name? It says BAKLOL. Okay, so fine. Okay, Mohit, yeah, Mohit. So all right, these alternative accounts are funny at times. Okay, so this was most of it. So what we did in array was like we stored the marks of, let's say, 5-6 students in a list, right, one behind the other. Let me just check if I happen to have access to that code. I mean, it would be easier for you guys to just okay, so I don't think we have access to that code right now, but okay, fine, no worries. So yeah, this is another important thing, that how arrays can have multiple. And if you write int array of, if you want to specifically have array of integers, you write integer in front of it. If you want to just have array of like mix variables like strings and integers put together, then you write just array of, and you can easily stuff things in. So that's like another benefit of array. And yeah, I think that's more or less like it. And then today it's a very like important topic that we have to cover. It's a bit difficult, I would say. I mean, not difficult, but a kind of tricky. You need to be more imaginative to understand why we need this and why we are using this, right? But before we start that, anybody has any questions like from the past, like anything that was not clear? I mean, I just quickly went over what we did in the last session just to give you guys a bit of reminders. But is there anybody who has like specific questions from the previous session, like what they attended it but they still had certain questions, so that I can address it for everyone now? Okay, anybody like who has like any question? Okay, so it seems like it's mostly clear. Even if it isn't, it's fine. I mean, if you guys are learning programming for the first time, the fact that you come here and listen itself is a good thing, is a great thing, in fact, because it's going to give you an edge when you start to go into your engineering colleges, or whenever you start to learn something related to programming again. You'll be like, ha, aisa kuch to suna tha, we did this.
it's going to give you an edge, because this is exactly what you're going to learn again ahead in engineering colleges, right? And one of the most important topics there is object oriented programming, in which use classes and objects, right? So we're going to try to get a bit of gist of that in probably today's session and tomorrow's session, while we try to build our own portfolio app. Yeah, so that's like an exciting part of the today's session. We try to build a small portfolio app which has like links of all your socials or all of it together, so with your name and all on it. So we'll try to build that in today or tomorrow. So try a bit today or tomorrow, like try to wrap it today, so in which you can, basically flex that I built this is my portfolio, and we'll try to do that while we try to learn this something very important. So I think let's get started then. Classes and objects. So yeah, just a meme to get started with. Like if you go to an interview and somebody asks what is oops, if you say whenever I drop a table in production I say oops, so they wouldn't call you back again, right? So that's why oops is a very important topic. They usually ask you this in interviews as well, like in a lot of company interviews, even in all of that. So let's start with classes first. So these are not your ordinary school classes. It's classes in Kotlin. So class is a blueprint for objects. Classes define methods that operate on their object instances. Cool. So I'll tell you what classes exactly are. So you can consider them as a blueprint. Okay. So like this is just for your imagination. Okay. So you have a blueprint. Let's say this is this house, right? So for every house there is a blueprint. Or like say whenever you guys must have seen an architectural drawing which has like the flats all layouts, right? So Yes, ma'am. they make it once, but you can use it to create similar flats like 100 times or 1,000 times or how many ever times you want, right? You're getting the point. So what you do is you create a framework, a frame layout key. The wall has to be built like this, the window has to be like this, the door has to be like this, and you can build the similar stuff again and again and again and again. But you can still make changes in it, like you can change the color of your walls, you can change the curtains you're using in the window, you can change those minor things, but you can use the same printout, like where the wall goes, where the door is, where the entry is, again and again and again, right? 1,000 number of times, and that saves you a lot of time. In what sense is it basically makes it easier for you, because you don't have to address those things again and again. कि अभी मुझे घर बनाना है, इसका मतलब ये कि मुझे 4 walls चाहिए, ये 2 windows चाहिए, ये door चाहिए. तो these are like basic requirements. Now you know about your house building stuff. That is exactly what a class does in the programming language, right? So it tells you firstly what all things you will be needing, and it would help you to recreate it again and again and again. Okay, so let's go to some next example to figure out how it is. So let's say this is a house. You have declared a class called house. Okay, now your house can have various characteristics, like what is the color of your house, like, right, number of windows in your house, and there could be one more thing, that is for sale. Anybody remembers what Boolean used to store? True or false? True and True or Yeah, false? exactly. So Boolean True and used to store true or false basically. So it just tells you. So is house for sale? If it is true, that means it's for sale. It is false, that means it's not for sale. So these are some data that you have in your house class. So there's a class that you have named as house now, and there are certain data in it, right? Now you know that these are some important things on your class data in your class basically, and you can now recreate this, and you can have like 100 different houses with different colors, different windows, and different options, like if it is for sale or if it is not for sale. Now if you were to put this into picture, this is how we do it in terms of code. Okay, so I'll just quickly
copy this and paste it, wherein you guys would then be able to understand what we're doing. So yeah. So yeah, by the way, we use this Kotlin editor, if you all are aware, to check. So this is our main, everything starts from here. So this is how you declare a class. You make it like this. You write the name of the class, then these are certain variables that you declared are part of your class. We'll get back to it as to why we need it. And this is how we create an object of the class. So now I'll tell you what does it mean to create an object of the class, plus why all of this even matters. So firstly, let me try to run this. So now you have a class and it has these variables in it. So there is color, there is number of windows, there is for sale, which is explicitly declared that my variable color is a string type and I have given white in it. My variable number of windows is a int type and I've given 2 in it. My val is for sale is this. So every time you have to create a house from this now. Okay, so let's say you have a class, right? जैसे मैंने बोला ये आपका ब्लूप्रिंट आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है. जैसे मैंने बोला था क्लास ब्लूप्रिंट होता है, तो दिस इज़ योर ब्लूप्रिंट. आपने बोला कि मेरे को जब भी हाउस बनाना है तब मुझे आपको बताना है कि कलर, विंडोज़ और सेल पे है या नहीं. ये 3 चीज़ें मेरे हाउस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो अभी जब भी इसमें से एक्चुअल हाउस बनाना होगा, whenever I want to create an actual house out of this is how I do it. I say that I have a class house, okay, and right now there are no parameters. We'll come back to it why there are no parameters and all of that, but this is how you say कि ये मेरा, इसको मैं बोल दूंगा this is my house 1 that I want to build from this class. You getting me? So this is like you have declared a variable कि मुझे अभी ये मेरा ब्लूप्रिंट था जो मैंने बताया है, तो यू आर टेलिंग Kotlin कि ये जो मेरा ब्लूप्रिंट है उसके बेसिस पे मुझे एक घर बना के दो, उसको मैंने नंबर दिया हाउस 1. सो नाउ योर हाउस 1 विल हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? If you were to leave it blank, you can actually leave it blank. Right now these all things are assigned already, so these are like by default characteristics. If you do like this, your house 2 will also have similar characteristics as this. But now if you want to make it different, let's say you want to make different kind of houses, so you want control over it, right? You don't want to have like same. So right now आपने blueprint बना तो दिया है, but आपने blueprint में ये भी लिख दिया है कि मुझे मेरा हाउस का कलर वाइट ही चाहिए और उसके उसमें 2 ही विंडोज होने चाहिए और उसमें इट शुडंट बी फॉर सेल. बेसिकली इस फॉर सेल फॉल्स कर दिया, इसमें दिस शुडंट बी फॉर सेल. अगर आपको इसको वेरिएबल करना है, अगर यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द यूज़र की जब भी मैं घर बनाऊंगा यूज़र को बताना है कि मेरा हाउस कैसा होगा. So for that you have this another thing that you basically use, that is, so firstly we declared about how to create an object. So basically जब भी आप आपके ब्लूप्रिंट से जो क्लास है उससे कुछ भी बनाते हो, जैसे बना वो के Kotlin को बोलते हो कि ये मेरा ब्लूप्रिंट है, उससे मुझे एक्चुअली एक हाउस बनाना है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. So that's like a major definition कि if you are creating something from the class that you have written, you are basically using your blueprint to actually bring it to reality, so you call it object instance of the class, right? So let's talk about next part, that is constructors. That is the problem that we discussed कि अगर अभी मुझे मेरे हाउस में बताना है कि मेरे हाउस का कलर क्या होगा, राइट? सो कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली वही करता है एज द नेम सजेस्ट. जैसे आपने आपके हाउस का क्लास बना दिया है, कभी एक हाउस नेम का क्लास बना दिया, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, बेस्ड ऑन वट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस, आप जो चीज़ें उसको बोलोगे उस हिसाब से आपका क्लास वो बना के देगा, राइट? सो विल डिस्कस दिस अहेड.
अभी तक मुझे ये बताओ कि किसी को क्लास इस कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या कि हमने ये क्या किया, या फिर वाई डिड वी डिक्लेयर इट लाइक दिस ओनली, या फिर ये चीज़ क्या कर रही है वगैरह वगैरह, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, पंकज डजंट हैव एनी डाउट, बट एनीबडी एल्स हु हैज़ एनी डाउट कि ये क्या हो रहा है इधर? बेसिकली हमने हाउस लिखा है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है. Me. या ओके, व्हाट इज़ योर डाउट एग्जैक्टली? So it's basically like मेरे को हमेशा से like ऐसे class and object I never understood it. Like I tried to study it from Okay. enormous websites and I cannot understand this time as well. Okay. So house 1, there is an object or a class. So house 1 is our object, and house is because we write the class name here, and we write the class name here, and this is our house. So this is our object. This is something we declared. और हमने Okay. प्रोग्राम को बोला है कि ये सो हमने प्रोग्राम को बोला है कि इसके बेसिस पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. या ओके, नाउ कमिंग बैक टू Okay, Vida's. now I get it. Yeah. Oh, Vida, was that you who said? It was me. Okay, so you get it now? Yeah, I kind of get it. Yeah, now. so let me just reiterate over this whole thing ना. थोड़ा सा ना इसको इमेजिनेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट इफ़ यू गेट द पॉइंट यू गेट लाइक ऑल ऑफ इट. तो इसमें ना आगे जाके क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? तो उसमें ना आप बता सकते हो जब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो आप इसमें पास ऑन कर सकते हो कि आपको कलर क्या चाहिए हाउस का, प्लस आपको विंडोज़ कितने चाहिए, प्लस आपको इस फॉर सेल है या नहीं, तो आप ऐसे पास कर सकते हो इसमें, ठीक है? तो जब आप इसमें ऐसे पास करोगे ना, तो आपका ये हाउस 1 जो ऑब्जेक्ट बना है इसका, उसके ये वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो जाके वो बनेंगे कि जो आपने पास किए. तो इधर भले ही वाइट Yeah. हो, बट अगर आपने अपना जो भी रेड कलर पास किया बाई लेट्स से, तो इन दैट सिनेरियो आपके हाउस 1 के जो वैल्यूज़ होंगे ना, दैट वुड बिकम रेड. और आपने बोला है कि लेट्स से मुझे 5 विंडोज़ चाहिए, तो वो 5 हो गया. और आपने बोला कि इट्स नॉट फॉर सेल, तो वो बोल देगा नॉट फॉर सेल. नाउ practically how this is beneficial is because abhi the same structure you are using for your house 2, but you get the liberty of making this house yellow and making it with let's say 3 windows and making it for sale even, right? तो बेसिकली आपका जो बेसिक ये जो है फ्रेमवर्क, वो ये क्लास प्रोवाइड कर रहा है कि मेरे हाउस में कितने चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जब आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है. तो ये क्लास इसको डिक्लेयर करता है कि दीज आर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इट, राइट? एंड देन बेस्ड ऑन दैट फ्रेमवर्क, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर आप चाहे 10 हाउस बना लो या 15 हाउस बना लो. एंड द स्पेशलिटी इज़ कि अभी इफ़ यू एवर गो अहेड एंड टाइप house1 let's say color, I like right now I do not sure if it would be accessible because the code is all written in half and half, but let's try it regardless when the constructor is half. So basically if you so right now it's not possible to do that, but इस basically आप ऐसे इसको imagine कर सकते हो कि बाद में अगर आपको चेक करना है कि हाउस 1 डॉट उसका कलर अगर आपको टाइप करना है, तो यू कैन ईजीली डू दैट कि यू कैन ईजीली फिगर आउट इट्स वाइट. और वैसे अगर आप चाहे 100 क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लो, 100 क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लो, इन केस इट वुड स्टिल बी लाइक कम्प्लीटली फाइन. ओके, सो किसी को इसमें डाउट है अभी? लाइक इज एनीबडी हु स्टिल hasn't understood anything or anything like that? हेलो, ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्या गाइस? नहीं, समझ आ गया. No, even if you have questions you can ask. Like we can easily spend a good amount of time here because it's like an important concept.
I can understand house one dot color. What does that do exactly? Yeah, I'll tell you what does it do exactly ahead. So like right now it doesn't do anything. It's just a representation thing कि in further ways if you write methods and inside etc into it, you can easily access the elements of your house जो आप डिक्लेयर करते हो. ठीक है, यू कैन Okay. एक्सेस इट इंडिविजुअली एंड यूज इट अहेड. कि अगर लेट्स से हाउस वन का मुझे कलर फाइंड आउट करना है तो मैं बस हाउस वन से कलर कॉल आउट करके आई कैन प्रिंट की. ठीक है, मुझे पता चलेगा कि ठीक है जब मैंने हाउस वन बनाया था तब मैंने उसका कलर ये रखा था. राइट इट, यू गेट इट गाइज ना. Okay. या आई मीन यू गाइज वुड लाइक एटलीस्ट थोड़ा सा जस्ट भी अगर आ रहा है अभी फिर दैट्स फाइन. सो yeah, so we can now discuss our constructors basically. So default parameters, class box. So let's do it this way. Cool. So अभी मैं क्या करूँगा इसमें I will try to add a constructor. ठीक है, तो अभी I'll just declare कि there is a color named string. There is basically a int and there is this property abstract must be defined. Okay, we'll just make it color and we'll make it windows and value for sale. Oh sorry, this has to be var. Property must be initialized or be abstract. Yeah, because we're creating an object from it. Okay, never mind. So what we do is we can have a constructor here. जैसे अभी मैं constructor की बात कर रहा था. Constructor, right? And we can say that the constructor of the house needs a color that has to be string, needs let's say windows that has to be integer and needs is for sale that has to be boolean. तो ये आपने क्या किया, इस हाउस का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा अभी, whenever you try to create an object of this class now, so if you try to say that I want to create a val जिसको मुझे हाउस नंबर 1 बोलना है और वो मुझे बनाना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है राइट, तो मुझे वो बनाना है इस हाउस के ब्लूप्रिंट पे. तो कंस्ट्रक्टर बोलेगा कि इस हाउस को अगर आपको बनाना है तो इसके ब्लूप्रिंट पे ये सब वैल्यूज़ है. तो अभी कंस्ट्रक्टर में आप जब आप इधर इसके वैल्यूज़ लिख दोगे कि कलर में आपने पास किया है रेड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि अगर जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें पास करना इम्पॉर्टेंट है. तो आपने बोला कंस्ट्रक्टर रेड राइट, फिर आपने बोला विंडोज़ मुझे 2 चाहिए और इस फॉर सेल नहीं, मुझे सेल पे नहीं डालना है इसको. ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्टर के पास ये वैल्यूज़ आ गई. तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पहले बोलेगा दिस डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर. आई टेल यू व्हाट डज दिस डू दैट. दिस डॉट number of windows is equals to windows and is for sale is equals to, sorry, this dot is for sale is equals to is for sale. Cool. So if I try to run this, so we'll just have some basic initializations here that my string is blank, my windows by default is let's say what integer, but by default is 0, and it's by sale we'll write it boolean is equals to let's say for by default it's not for sale. ठीक है, तो अभी what we can do is variable house one is never used, so it's fine, we'll use it. तो अब हम क्या करेंगे कि
this, and I'll tell you what has happened. This code is run, right? Additionally, so there is some special characteristics about constructor. ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, okay, do you have a doubt? Okay, yeah, Garima, ask. So can you explain the class, house, and construction once again? Yeah, I'll do that. We're gonna go over this entire flow again, don't worry. So what happens is there is this special characteristic about constructor. तो फंक्शन के बारे में याद है किसी को? हमने फंक्शन डिक्लेयर करा था मेन क्लास के बाहर, ऐसे कोई सा एक फंक्शन टेस्ट करके, याद है सबको? Yes. Yes. या तो मुझे बताओ कि अगर आपने फंक्शन बस लिख दिया है बाहर क्लास, इधर फंक्शन मेन के बाहर आपने बस फंक्शन लिख दिया है, वुड इट रन व्हेन यू रन द प्रोग्राम? कि बस आपने लिखा है फंक्शन, वुड द फंक्शन रन? No. हमें क्या करना पड़ता है कोई फंक्शन रन करने के लिए? Return करवाना पड़ता है वैल्यू. नो, यू हैव टू कॉल इट, राइट? बताना पड़ता है मेन yeah, से, call it, yeah. यू हैव टू मेन से, यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन नेम, एंड अगर फंक्शन को कुछ वैल्यूज चाहिए तो पास करना पड़ता है या फिर मेन से बताना पड़ता है, राइट? ठीक है, तो आप ना कंस्ट्रक्टर को एक फंक्शन करके मान सकते हो, क्योंकि देखो सब चीज़ सेम है. आप इसके भी, इसका डिक्लेरेशन भी सेम फंक्शन जैसा है, बस इसमें फंग वाला कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया है, बट इसमें भी हम वैल्यूज पास कर रहे हैं और इसके अंदर भी हमने कुछ कोड लिखा है. ठीक है, ये इतना क्लिक कर रहा है सबको कि हमने फंक्शन के अंदर भी हम वैल्यूज पास करते थे, प्लस हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वैल्यूज पास कर रहे हैं. तो कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब भी आप हाउस से कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हो या बना रहे हो कोड में, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, अपने आप. जैसे द मोमेंट यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे हमने इधर बोला है कि मुझे हाउस 1 बनाना है मेरे हाउस के क्लास से, तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो हाउस का कंस्ट्रक्टर है ना, बेसिकली उस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो. तो आपको उससे ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर आपको लेट्स से उस ब्लूप्रिंट से आपको एक्चुअली घर बनाना है, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गई, बिकॉज इट गेट्स कॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट. तो ये कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और वो हर क्लास में होता है. अगर आप इसको लिखोगे कहीं पे भी हर क्लास में कंस्ट्रक्टर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा. सो दैट इज़ लाइक वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे टू वेरीफाई कि ये एक्चुअली कॉल हो रहा है या नहीं कॉल हो रहा है. मैं इधर बस प्रिंट करूँगा कि प्रिंट एंड आई से वैल्यूज़ ऑफ दिस हाउस. वैल्यूज़ ऑफ दिस हाउस. मुझे बताओ अभी मुझे इसमें अगर वेरिएबल प्रिंट करना है तो क्या लिखूँगा मैं? How will I print the variable while printing? What do we use? कौन सा साइन यूज़ करते हैं वेरिएबल प्रिंट करते समय? No, we don't use, we use for like we. Is it a comma? No, it's not comma. We use a particular sign when we want to print a variable in the sentence. No, not ampersand also. So it's we use Dollar sign. Yeah, exactly. We use dollar Okay, yeah. sign while printing. So house. So we say color is, and we write let's say color. Okay, wait. So what's the matter here? Oh, we have to end this. Print values. So we basically want to print the values of this variables here. So we can say that we want to print dollar color. Wait, why is it not picking it up? Color and wait. So let me just try to run it regardless. House of it. Yeah, unresolved reference. This dot color. Yeah, okay, so basically we'll come to that part later, but let's say we want to, so basically we'll just write here that the object is created. ठीक है,
So why is it in capital color? Why is it? Because what color are we trying to say? Wait. No, you're writing a dollar this dot color, so the color was in No, capitals. I entered that by mistake. It has to be in small only. But we'll go there later. We'll just say the object is created. ओके सो अभी विल फर्स्ट सी व्हाट हैपन्स हियर. ठीक है, ये वाला कोड पहले समझ लेते हैं, फिर आगे जाएंगे उसको प्रिंट करवाने के लिए. तो अभी हमने क्या किया इधर, वी सेड दैट वी वांट अ हाउस 1 इस ब्लू प्रिंट से और इसको ये वैल्यूज़ चाहिए. ठीक है, गॉट इट. तो क्या होता है, इधर से रेड इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है और फॉल्स इधर आ जाता है. दिस डॉट कलर क्या करता है, दिस मतलब इट टॉक्स अबाउट द वेरिएबल हियर, बिकॉज इधर हमने 2 कलर डिक्लेयर किए राइट, एक इधर है और एक इधर है. एक नंबर ऑफ विंडोज़ इधर है, इधर तो चलो खैर विंडोज़ यूज़ किया, बट इस फॉर सेल ये सेम है. तो एक इस फॉर सेल हमें इधर से आया है मेन फंक्शन से, और एक कलर हमें इधर से आया है, इधर से फ्रॉम द मेन फंक्शन. सो वी से दिस डॉट कलर इट बेसिकली जस्ट हेल्प्स टू स्पेसिफाई कि दिस मतलब इस क्लास का जो कलर है उसको हमने इससे असाइन कर दिया जो हमें ऊपर से मिला है. इस क्लास का जो नंबर ऑफ विंडोज़ है हमने उसको ऊपर से जो हमें विंडोज़ मिला है उससे असाइन कर दिया. और इस क्लास का जो व्हाट यू से इस फॉर सेल बूलियन है वो हमने जो ऊपर से आया है उसको असाइन कर दिया. सो दिस बेसिकली जस्ट हेल्प्स टू स्पेसिफाई कि we are talking when we say this dot any variable name, it means we are talking about the variable in this particular class. That is what this does more or less. फिर बाद में coming to this when we created, so ये सारे values उधर आ गए और ये इस value को assign हो गए. Fine. So what we can do is we can now write a function. ठीक है, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फन एंड वी राइट प्रिंट वैल्यूज़ कर देंगे इसको, और हमें कुछ पास नहीं करवाने इसके अंदर. ठीक है, तो हम इसमें सीधा कर देंगे प्रिंट. ओके, हम इसमें कर देंगे प्रिंट हाउस, लेट्स से सीधा वैल्यूज ही प्रिंट कर देते हैं. चलो कोई नहीं, वी जस्ट प्रिंट कलर एंड विल प्रिंट कलर प्रिंट करना है. फिर हमें प्रिंट करना है विंडोज़, क्या वेरिएबल नाम था, नंबर ऑफ, मैं बताऊंगा ये क्या हो रहा है बेसिकली. फिर you'll know print in windows and we do what is for sale. तो ये बेसिकली प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो गया जैसे हमने बनाया, ये सारे वैल्यूज इधर असाइन हो गया, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही गया तो जो भी कंस्ट्रक्टर में वो सारा प्रिंट कर देगा. इट विल प्रिंट एवरीथिंग दैट इज़ इन द कंस्ट्रक्टर, इवन इफ यू हैव लाइक एंटायर एडिशन वाला कोड योर ए इज इक्वल्स टू 2 बी इज इक्वल्स टू, वो भी एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर के अंदर वाला कोड है. और क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने पे कॉल होता है तो इट बेसिकली डज दैट राइट. सो दैट इज़ वाई दैट इज़ अबाउट कंस्ट्रक्टर. तो अभी हमारे पास हमने एक फंक्शन लिखा है इसके अंदर जो बस हमारे फंक्शन की वैल्यूज़ प्रिंट करता है, सॉरी द क्लास की जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट करता है. सो आई टेल यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड you'll know how this class thing and exactly works, so that should make stuff a bit clear for you. And okay, values of this house. So run. तो ये तो कॉल नहीं हुआ, तो ये रन हुआ, ये असाइन हो गया. ये कॉल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर भी नहीं है कि अपने आप कॉल होगा, तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा. नाउ द मैजिक एंड द फन पार्ट इज़ कि आप इसको कैसे कॉल कर सकते हो. आप सीधा हाउस 1 के ऑब्जेक्ट से बोल सकते हो कि मेरा एक क्या नाम दिया था हमने फंक्शन का, प्रिंट वैल्यूज़ करके फंक्शन है. प्रिंट वैल्यू जैसे सजेशन में आ गया, प्रिंट वैल्यूज़ का फंक्शन है, उसको कॉल कर दो. और हमने ब्रैकेट्स क्यों ज़ीरो रखे, ब्लैंक रखा है, बताओ कोई फंक्शन के इस वाले ब्रैकेट्स क्यों ब्लैंक रखा है कॉल करते. पैरामीटर्स नहीं दे रहे हैं हम लोग हाँ कोई. एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे इधर फंक्शन जब हमने डिक्लेयर किया था हमने उसको बोला नहीं था कि
जब भी मुझे कॉल करोगे मुझे पैरामीटर चाहिए, ब्लैंक है इधर ये, इसका मतलब इस फंक्शन को पैरामीटर्स नहीं लगते, तो हमने इसको ब्लैंक रखा, तभी इधर कॉल करते समय भी कुछ वैल्यूज़ मांगे नहीं उसने. सो आई प्रिंट दिस. सो हियर वी गो, print. So wait, this is again, sorry, I'll just add a new line just to make it easier for you to understand. So here it is, the values of this house is red, 2 and false, जो हमने इधर से पास करी थी, red 2 और ये. Now to make it easier for you guys to understand, मैं एक और एक हाउस बनाऊंगा. I'll name it house 2 and I'll give its values. Let's say मुझे white चाहिए and I want like 5 windows and it is for sale. ठीक है. एंड मुझे बताओ अभी मुझे इसका वैल्यूज प्रिंट करना है, तो हाउ वुड आई राइट? अगर मुझे हाउस 2 का भी प्रिंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? house2 dot print value. या एग्जैक्टली, हाउस 2 डॉट प्रिंट वैल्यूज. आई विल डू दैट. ठीक है. इट बेसिकली वंस यू हैव डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट ना, आपका आईडी भी आपको रेकमेंड करना शुरू कर देता है कि ये सारी चीज़ें हैं. तो अभी हमने ना एक काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिक्लेरेशन, और उसमें से हमने एक फंक्शन डिक्लेयर करके कॉल किया. तो अभी देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव अराउंड हियर कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है. ठीक है, मैं आपको एक सारा फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ. एंड गिव मी अ मोमेंट. सो ठीक है, तो लेट्स गेट ओवर ऑल दिस. तो अभी हम हमारे क्लास पे आएंगे वापस. तो कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं. क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है, वो बताता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है उसमें से, तो इट टेल्स कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, राइट. इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंस्ट्रक्टर होती है, जो स्पेसिफाई करता है कि अगर किसी को कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास से, तो उसको क्या क्या वैल्यूज़ पास करनी होंगी. ठीक है, दैट इज़ अबाउट क्लास. तो अभी ये क्लास की जो बात कर रहे हैं हम, इसके इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स या इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो है इस क्लास के, वो है कलर, नंबर ऑफ विंडोज़, इज़ फॉर सेल. वो क्योंकि हमने ऐसे डिक्लेयर किया. हम ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस हाउस का एक इम्पॉर्टेंट और एक पैरामीटर है कि हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स भी ट्रैक करने हैं. आराम से लिख सकते हैं हम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए हमें बस लिखना पड़ेगा वैर, और एक डिक्लेयर कर देंगे कि नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या है, और इधर हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमें फ्लोर्स भी चाहिए, और इधर हमें फ्लोर्स का भी असाइनमेंट करना पड़ेगा. तो ये हो गया क्लास का चीज़. ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है वो इस क्लास का पार्ट है अभी. ठीक है, तो ये फंक्शन इस क्लास का पार्ट है. तो जब आप इससे, इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट से कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हो, जैसे हमने बनाया हाउस 1 इधर, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपका कोड चेक करता है कि क्या चाहिए इस कंस्ट्रक्टर को. बेसिकली क्लास चेक करता है पहले, क्लास में कंस्ट्रक्टर है क्या. पहले नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए हमें कुछ पास करना नहीं पड़ा. अगर हम कंस्ट्रक्टर ब्लैंक कर देंगे तो हमें फिर भी कुछ पास करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर एक्ट्स लाइक अ फंक्शन, बट इट गेट्स कॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट द मोमेंट वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी कि इट गेट्स कॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट. तो इधर हमने बनाया हाउस, और एक हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया इधर हाउस 1, रेड 2 फॉल्स पास कर दिया, तो वो सीधा इधर आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. तो रेड 2 फॉल्स हो गया, तो इधर आ गया रेड की वैल्यू, इधर आ गई 2 और इधर आ गया फॉल्स. तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने गए थे हम, तो रेड की वैल्यू इधर आ गई. तो दिस डॉट कलर क्या बोलता है कि मेरे क्लास का वेरिएबल पकड़ना, इस फंक्शन का वेरिएबल मत पकड़ना. मेरे क्लास में भी एक कलर नाम का वेरिएबल है, मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है मुझे. तो मुझे उसकी वैल्यू पकड़ के मैं मेरे जो क्लास का वेरिएबल उसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे स्टोर करके रखना है कि इस पर्टिकुलर हाउस का पूरा कलर जो है वो रहेगा जो मुझे ऊपर से आए. इस हाउस का विंडोज़ है जो ऊपर से आए वो मुझे असाइन चेंज करना है. इस हाउस का बुलियन जो है इस फॉर सेल जो ऊपर से आया मेन से, मुझे वो चेंज करना है. और फिर वो प्रिंट कर देता है, क्योंकि हमने बस लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड. ठीक है, तो ये लाइन बस इधर तक रन होती है. फिर हमने बोला कि चलो अभी मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, मैंने ये वैल्यूज़ मेरे ऑब्जेक्ट को दे चुका हूँ मैं, तो मुझे बस प्रिंट करने हैं अभी ये सब सारी चीज़ें. बट अभी मुझे बेसिकली डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है कुछ भी उसमें, मतलब ऑब्जेक्ट में अगर आप जाओगे सीधा हाउस को, अगर आप बोलोगे कि हमने ऐसा क्यों अलग से फंक्शन लिखा है, तो अगर मैं बोलूँ कि
सीधा हाउस को मैं प्रिंट करूँगा ना तो आपको एड्रेस आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एड्रेस में ना ये सारे चीज़ें स्टोर्ड है साथ में, कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, तो सीधा प्रिंट करोगे तो एक एड्रेस आता है आपको कि ये सारे कोड लाइंस उस एड्रेस पे स्टोर्ड है। सो बेसिकली वी कैन नॉट प्रिंट आवर हाउस डायरेक्टली, दैट इज़ वाई। तो मैंने ये प्रिंट, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू डिक्लेयर अनदर फंक्शन फॉर जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यूज़, कि जो बेसिकली मैंने तो फिर एक एकदम बेसिक सा फंक्शन डिक्लेयर किया मैंने, जो हमारा फंक्शन कीवर्ड है प्रिंट वैल्यूज़, उसको नाम दे दिया। मैंने बोला कि पैरामीटर्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बस प्रिंट करने, मेरे पास जो वैल्यूज़ है उसको मुझे प्रिंट करने, तो मैंने लिखा और मैंने उसके अंदर बस बोल दिया प्रिंट 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 प्रिंट। और जब अगर हम क्योंकि इधर कोई कलर की वैल्यू पास नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल नहीं आ रहा है, ये सारे वेरिएबल बस इसके अंदर एक्सेसिबल होता है, वो बाहर नहीं एक्सेस कर सकते आप। इधर से नहीं कलर, इस वाले कलर को इधर से नहीं कॉल कर सकते, इस वाले विंडोज़ को भी इधर से नहीं कॉल कर सकते, वो बस ये दो ब्रैकेट के अंदर ही कॉल कर सकते हो आप, क्योंकि ये इस फंक्शन की चीज़ है। तो द सेम थिंग हैपन्स। तो इधर हमने दिस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये वाला कलर नीचे एक्सेसिबल तो है नहीं, तो इसके पास बस एक ही कलर अवेलेबल है, वो है ये, तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन दैट सिनेरियो। इस वाले के पास भी बस यही एक एक्सेसिबल है, क्योंकि इसका लिमिट इसके बाहर ख़त्म हो जाता है। तो वी डू नॉट, तो इन दैट सिनेरियो वी डोंट हैव टू राइट दिस डॉट वेरिएबल नेम, एंड द सेम थिंग हैपन्स हियर, एंड वी जस्ट प्रिंटेड ऑल द वैल्यूज़। तो द सेकेंड स्टेप इज़ कि हमने फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया है अब, बट ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन डिक्लेयर किया, बट फंक्शन को कॉल नहीं किया। जैसे कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है, बट ये हमने खुद से लिखा है अलग से फंक्शन, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सीधा कॉल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन, जैसे हमने ये प्रिंट करने के बाद क्या रिटर्न आया था, एड्रेस रिटर्न आया था, तो हमें कोड को बताना पड़ता है कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। और वो हम कैसे बताते हैं कोड को, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे ही हम डॉट करते हैं हमें सारे फंक्शंस का एक्सेस मिल जाता है उसके अंदर। ऐसा भी इसके अंदर मैं एडिशन का भी फंक्शन लिखूंगा ना, तो मुझे उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो द ऑब्जेक्ट डॉट बेसिकली सेज कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर का, एंड देन यू राइट द फंक्शन नेम। सो बेसिकली you want to access the function within that object and then it accesses that particularly और वो प्रिंट कर देता है। एंड बस फिर ये जो प्रिंट वैल्यू है वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, ये इस वाले के अंदर के वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वाला प्रिंट इज स्टोर्ड इन हाउस 2। तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यूज़, बट द टेम्पलेट, द बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ किया है, that is the same for both of them. And this is how our basic function class, this is how we have basically built a basic class, an object out of it, and we are also called a function from that object which we had declared in the class. ठीक है, तो I think is there anybody who has questions now कि ये कैसे चला या कैसे नहीं चला, या what if we do this, what if we do that? Let's try to address that. या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, नहीं समझ आया कुछ भी, एंड दैट्स फाइन, यू कैन टेल मी। सी लिसन गाइज, you guys are already putting in a lot of efforts. All these things are usually taught in your engineering classes, unless you have taken some extra course in your school to learn object oriented programming. So it is a bit of an advanced concept. You're going to use it a bit more frequently further, but in case you haven't understood, it's completely fine. Just tell me, just raise your hands. कुछ भी डाउट है किसी भी पार्ट में कि ये कैसे रन हुआ, या कोड को ये कैसे समझ आया कि हमें यही कॉल करना था, या फिर इसके वैल्यूज़ कैसे असाइन हुए। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट इन दैट। Okay, so Dhruvi says everything flew over my mind for a moment, but got it somewhat. Okay, so Dhruvi says he got it somewhat. किसी को है कि कुछ ही समझ नहीं आया, कि नहीं समझा ये फ्लो क्या था, and that's completely fine. You can guys can be just brutally frank to me. I don't know because I'm not here. Okay, Garima understood 60%. All right. Okay, the last function, can you repeat? Sure, I'll repeat how the function was called. Fine. Okay, Vida understood 55%. Okay, it's very interesting how you guys. Okay, Pankaj understood 190%. All right. So fine. You guys are understanding oops faster than me, definitely. Okay, Akanksha says fine. So
will need to revise. Yeah, it might need you know because पहली बार में नहीं दिमाग में घुसता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है but I joined late. I had okay Rakshvi. Rakshvi, you joined this recently, that is why. तो एक काम करते हैं ना, हम क्या करेंगे अभी, हम एक वापस एक बेसिक सा, या फिर बोर हो गए अभी? अब ऐसा बोर हो गया हो क्या गाइस? मैं सोच रहा था कि एक्चुअली एक बार आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ देन 80%. ओके ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं अभी कि हमें ना वो पोर्टफोलियो ऐप स्टार्ट करना था आज, बट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अभी 8 तो बज गए इसमें. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट डू वी डू. एक फटाक से एक क्लास क्रिएट कर ले क्या, ताकि यू गाइज डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि विल जस्ट क्रिएट वन मोर एग्जाम्पल कोड, ताकि द कन्फ्यूजन काइंड ऑफ गेट्स रिजॉल्व्ड. Yes, sir. ताकि क्योंकि ना कल नहीं एनिमल्स नहीं, स्टूडेंट्स करेंगे. तो ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, हम एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं. सी द होल मोटिव इज़ कि ना मुझे आपको ये थोड़ा, अगर अभी थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा समझा है, तो मैं थोड़ा और एक एग्जांपल लेके प्रॉब्ली यू गाइज वुड अंडरस्टैंड इट बेटर. और ताकि मतलब कल अगर मैं इधर से छोड़ के कर लूँगा तो प्रॉब्ली फ्लो माइट और मे नॉट क्लिक. सो व्हाट विल डू इज़ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है. तो लेट्स से किसको किसको क्या क्या याद है, तो मुझे बताओ फटाफट क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं. You write class and then the name या with क्लास, brackets. तो चलो आज अभी हमें बनाना है स्टूडेंट नाम का क्लास, ठीक है. तो हमने बोला क्लास स्टूडेंट, फिर हम लिखते हैं ये, तो क्लास हमारा Yeah. कीवर्ड है ये, ठीक है. तो अभी हमें क्या लिखना होता है नेक्स्ट? Well, हाँ तो वो Val. हाँ तो वो वैल क्या होता है वो क्लास का क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उस क्लास के, राइट. जैसे हमने Yes. हाउस के लिए कलर बोला था, तो स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है? एक तो स्टूडेंट का नेम हो गया, number of students. नहीं तो रोल नंबर. एक स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, जो हो गया स्ट्रिंग. और तो उसको उससे हम page. एक एज हो सकता है स्टूडेंट का, है ना. स्टूडेंट का एज हो गया, जो होगा इंटीजर. और क्या हो सकता है स्टूडेंट का? रोल नंबर. हाँ, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है स्कूल में. क्लास सेक्शन. हाँ, रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का. Gender. हाँ, जेंडर हो सकता है, तो हम एक रोल नंबर लेते हैं, उसको 0 बोल देंगे. और एक जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर ले लेंगे. जेंडर, ठीक है, जेंडर जेंडर, और हमने लिया है इसको लेट्स से स्ट्रिंग, ठीक है, हो गया. तो अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? एक ये पूरे डिक्लेरेशन में एक गलती है. We are using val, I think. या एग्जैक्टली, हमने वैल्यूज़ किया गलती से. अभी मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना आगे, क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी लिया है. अगर हम वैल रखते तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर में? नहीं, क्योंकि वो एक बार ही असाइन कर सकते हैं वैल में, राइट. तो हमें वैल्यूज़ करना है बेसिकली, सो दैट वी कैन चेंज द वैल्यूज़ बाद में. तो ठीक है, ये हो गया. तो चलो अभी हमने इस पे लेट्स टेक टू दीज थिंग्स ओनली. तो ये हमारा एक स्टूडेंट क्लास बना दिया हमने, और हमने बोला कि हमारे हर स्टूडेंट का ये फीचर होता है, ये सारे हमें स्टोर करने बेसिकली हर स्टूडेंट के लिए. तो अभी मुझे बताओ कि हम वैल्यूज़ लेने के लिए क्या डिक्लेयर करेंगे? What is the most important part of the class that assigns values? Constructor. Constructor. So we write constructor. तो उसमें कंस्ट्रक्टर में ये जो सारे वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे हम वापस, कि कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होता तो आपको उसमें इंटीजर पास, उसमें आपको स्ट्रिंग पास करना है, ठीक है. फिर आपको उसमें पास करना है एज हमारे स्टूडेंट का, जो होगा इंट. फिर आपको पास करना है रोल नंबर, जो वापस होगा इंटीजर. फिर आपको पास करना है जेंडर. तो कंस्ट्रक्टर को बोल दिया कि भाई ये सब चीज़ें तेरे को कंस्ट्रक्ट करनी है,
और कोई अगर इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है तो उससे ये सारी चीज़ें मांग लेना याद से। तो बेसिकली हमने कंस्ट्रक्टर को बोल दिया कि भाई मेरे क्लास में मेरा जो क्लास है जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है स्टूडेंट के लिए उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई इसको कॉल करता है ना तो प्लीज़ इसको याद से ये सारी चीज़ें मांग लेना उससे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो कंस्ट्रक्टर तो चलो अभी आगे मांग तो लेगा वो चीज़ें, बट हमें इसको असाइन करना होगा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर के पास चीज़ें आ जाएंगी, बट फिर हमें बताना है ना कंस्ट्रक्टर को कि जो चीज़ें तेरे पास आएंगी वो तू कहाँ स्टोर करेगा। This dot. या तो आपको this dot name. या एग्जैक्टली तो आप कंस्ट्रक्टर को बोलोगे कि भाई तेरे पास जो चीज़ें आएंगी जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा वो तू दिस क्लास के अंदर जो नेम है ना उसके अंदर तेरा नेम डाल दे, और इस क्लास के अंदर जो एज है दिस डॉट एज उसके अंदर जो तुझे कोई एज पास करेगा वो डाल देना, और दिस डॉट रोल नंबर जो है इस क्लास का उसके अंदर तू पास कर देना तेरे पास जो रोल नंबर आया है ऊपर से मेन से, और वापस बोल देगा कंस्ट्रक्टर को कि भाई और क्या बचा है कंस्ट्रक्टर के पास, हाँ जेंडर बचा है, तो दिस डॉट जेंडर जो है इस क्लास का वो भी तुझे जो ऊपर से आएगा वो इधर असाइन कर देना। सो दैट इज़ व्हाट द कंस्ट्रक्टर वुड डू एग्जैक्टली लाइक यू टेल इट, ठीक है। किसी को वैलिडेशन चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट बन गया भाई, कुछ वैलिडेशन ले लेते चलो। अच्छा हमारा कंस्ट्रक्टर वैलिडेशन दे देता है तो बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया कंस्ट्रक्टर को कि भाई दिस इज़ ऑल दैट ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड बोल देना मेरे को बाद में जब तेरा सारा रन हो जाए। तो अब मुझे बताओ कि अभी मुझे एक स्टूडेंट तैयार करना है, ठीक है। लेट्स से वी आर दिस, हमारा स्टूडेंट रोबोट है, वैसे भी लोग वही मानते हैं स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन की रोबोट होना चाहिए। तो हम बना रहे एक स्टूडेंट, ठीक है, इस ब्लूप्रिंट के ऊपर कि हमारे स्टूडेंट में नेम है, एज है, रोल नंबर और जेंडर है। तो इसके ऊपर अभी हमें एक हमारा खुद का स्टूडेंट बनाना है जिसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे। तो बताओ कैसे डिक्लेयर करोगे उसको, बताओ। Function. नहीं, वी हैव टू क्रिएट अपना खुद का स्टूडेंट इसमें से बेस्ड ऑन दिस ब्लूप्रिंट। Student 1. पहले तो val student 1. या एग्जैक्टली तो Where पहले student. एग्जैक्टली तो बेसिकली मुझे पहले ये बताओ कि जो आप स्टूडेंट बनाओगे उसको आप क्लास का क्या बोलोगे, व्हाट वुड इट बी कॉल्ड इन थियोरेटिकल टर्म्स, क्लास का Member. ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, Object. राइट। सो बेसिकली क्योंकि आप इस क्लास से इस ब्लूप्रिंट से अपना खुद का कुछ बना रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। दैट्स लाइक एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। इस क्लास से आप जो भी बनाओगे, कितने भी स्टूडेंट्स बनाओगे, हर स्टूडेंट आपके क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। सो दैट्स लाइक ए थियोरेटिकल थिंग कि ब्लूप्रिंट यूज़ करके आपने कुछ बनाया तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट। तो आपका हर ऑब्जेक्ट ना वेरिएबल होता है बेसिकली, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, वो नॉर्मल वेरिएबल ही होता है। तो यू स्टार्ट विद द नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट जस्ट अ वेरिएबल ऑफ क्लास, गेटिंग मी। क्लास को आप ना एक पूरा वेरिएबल मांग सकते हो, जैसे हमारा इंटीजर था, बुलियन था, वो सारा था ना, वैसे आपने अपना खुद का एक वेरिएबल बना लिया है, एक सॉर्ट ऑफ। जब आप क्लास डिक्लेयर करते हो तभी तो आप इसको वैर में स्टोर कर पा रहे हो, है ना, समझ रहे हो कि वैर में हम क्या क्या स्टोर कर पाते थे, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग, यही सब स्टोर करते थे ना हम वैल में, वेरिएबल में हमारे। बट अब हम क्लास स्टोर कर पा रहे हैं जो हमने खुद से लिखा है, तो बेसिकली वो वेरिएबल ही काइंड ऑफ ही होता है जो आप उसको मान सकते हो। तो चलो अब हम एक स्टूडेंट को नेम देते हैं अपना, स्टूडेंट 1 बोल देंगे उसको, या कोई और नेम देना किसी को। चलो ठीक है, हम प्रोग्रामर से तो स्टूडेंट 0 मानते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट को। तो ये हो गया स्टूडेंट। तो अभी मुझे बताओ कि आप कॉटलिन को कैसे बताओगे कि ये जो मेरा स्टूडेंट वाला है उसको मुझे इसके ब्लूप्रिंट के ऊपर जनरेट करना है। व्हाट वुड आई राइट, मुझे बताना है कॉटलिन को कि इस क्लास के ऊपर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। This dot. नहीं, नॉट दिस डॉट, बिकॉज वी हैव टू कॉल दिस क्लास बेसिकली। दिस डॉट तो क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। The student. या तो हम बोलेंगे कि पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा क्लास का बनाना है आपको, तो आपको क्लास का नेम लिखना पड़ेगा,
राइट। अगर आपका क्लास का नाम लेट्स से इधर होता है स्टूडेंट 007 है जेम्स बॉन्ड अपना, तो अब हमें पूरा लिखना पड़ता है इधर स्टूडेंट 007। तो मोस्टली हमें पहले ये बताना पड़ता है कि ठीक है भाई तुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना है, बट तुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे कि मुझे मेरा जो स्टूडेंट 0 है इज़ दी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू राइट पहले क्लास का नाम जो हमने दिया है, ठीक है। फिर अब हम इसमें वैल्यूज़ कैसे पास करेंगे By creating a function. ना। सो बेसिकली ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स है उसमें वी पास इन द वैल्यूज। सो व्हाट आर वैल्यूज डू वी हैव टू पास इन दिस? नेम, एज, रोल नंबर, या जेंडर। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर मांगेगा कि भाई तू ऑब्जेक्ट तो बना रहा है इधर स्टूडेंट का, बट मुझे ये सारी चीज़ें तू पहले पास कर ताकि मैं ये जो तेरा स्टूडेंट 0 है ना उसको मैं ये सारी चीज़ें असाइन कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट, वी स्टार्ट नेमिंग द ऑब्जेक्ट। लेट्स से वी से द स्टूडेंट नेम इज़ रोहन। एंड दूसरा क्या चीज़ था हमारे पास जो हमें कंस्ट्रक्टर में पास करना है? एज एज 15। फिर दूसरा क्या था? रोल नंबर। तो लेट्स से उसका रोल नंबर 1 है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है। फिर वी राइट द जेंडर, विल आई डिक्लेयर हिम मेल। ठीक है, हो गया। तो वी हैवंट प्रिंट एनीथिंग नाउ, विल जस्ट रन दिस कोड। It says object is created. Why does it print it when we haven't called this anyways? Why is this getting printed? कंस्ट्रक्टर। Yeah, because it's constructor. And what does constructor do? Automatically. Yeah, it gets called automatically. तुमने constructor को वैल्यू पास किया, constructor बोला मुझे मेरे पास वैल्यू आई तो मैं रन होऊंगा, राइट। तो constructor gets called automatically. तो अभी मुझे बताओ अगर मुझे इसमें से प्रिंट करना है क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ प्रिंट स्टूडेंट 0? कैन आई राइट या स्टूडेंट 0? क्या होगा अगर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा सीधा मेरे स्टूडेंट 0 को? अभी हमने चेक किया था ना क्या होता है, किसी को याद है? प्रोबेबली द आईडी। Like या एग्जैक्टली, क्योंकि वो एड्रेस प्रिंट कर देगा सीधा। वो बोल देगा कि ये जहाँ पे स्टोर्ड है मैं वो रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए उसमें से, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ है। उसमें 4 वेरिएबल्स है, कंस्ट्रक्टर है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो सीधा एड्रेस प्रिंट कर देता है कि ये स्टूडेंट कहाँ स्टोर्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? स्टूडेंट 0 डॉट नेम आई थिंक। we'll just declare, so in that case also we wouldn't be able to access it directly। तो हमें एक फंक्शन बना देंगे हम सीधा कि सारा प्रिंट ही कर दे Oh, भाई, yeah. तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि तू सीधा सब कुछ प्रिंट करके रख दे। तो हम क्या करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए कि सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए, हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे उसके अंदर। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं? FUN स्पेस function. नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो हम प्रिंट नेम ऑफ द फंक्शन प्रिंट लेट्स से वैल्यूज़, ठीक है, कुछ भी देख सकते हो तुम इसको नाम, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंट स्टूडेंट का प्रिंट स्टूडेंट डेटा कर देंगे, ठीक है। इसमें हमें पास करनी है कुछ चीज़ें मांगनी है ऊपर से, नो नो। क्योंकि हमें बस प्रिंट करना है, हमें कुछ चाहिए नहीं प्रोसेस करने के लिए, तो हम इसको ब्लैंक रख देंगे। तो हम बोलेंगे प्रिंट वैल्यूज़, लेट्स से वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये पहला एक लाइन प्रिंट कर देगा, प्रिंट एलन कर देते हैं ताकि न्यू लाइन पे हो जाए, अदर भी एलन कर देंगे ताकि न्यू लाइन। प्रिंट एलन क्या क्या प्रिंट करवाना है हमें? पहले प्रिंट करवाना है नेम। इधर हम 10 क्यों नहीं लिखते? इधर दिस डॉट नेम क्यों नहीं लिखा हमने? Ma'am, sir, because you have already declared it in the constructor. या बेसिकली बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट, प्लस इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। इसको एक ही नेम का एक्सेस है, इसको इस वाले का एक्सेस नहीं है, क्योंकि इस वाले नेम वगैरह का एक्सेस तो बस कंस्ट्रक्टर के पास है, और जो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड है उसके पास ही ये वेरिएबल्स का एक्सेस है। इसके अंदर वाले कोड को कन्फ्यूजन होता है कि इस वाले नेम की बात कर रहे हो या इस वाले नेम की बात कर रहे हो, इस वाली एज की बात कर रहे हो या इस वाली एज की बात कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर कन्फ्यूजन होता है। इधर कन्फ्यूजन है कोई नहीं, राइट? नो। इधर सीधा पता है कोड को कि क्या कहाँ पे, सीधा एक ही है इसके पास वैल्यूज़ है, तो वो हमने प्रिंट कर दिया। तो हम वापस करेंगे प्रिंट एलन जेंडर, क्योंकि इसके पास एक ही जेंडर है जो इधर सारे, ठीक है। तो हम अभी रन करेंगे। ओ व्हाट डज इट से? डिड आई मेस अप समथिंग?
फंक्शन You hadn't called it on the function. ओ सॉरी, हमने बस प्रिंट ऐसे ब्लैंक लिख दिया, हाँ सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट स्टिल भी फिर भी हमारे वैल्यूज़ नहीं प्रिंट हुए। क्यों नहीं प्रिंट हुए? We have not called in the function. हाँ, क्योंकि हमने कॉल नहीं किया है। तो मैं कॉल कैसे करूँगा? सीधा लिख दूँ ना, प्रिंट स्टूडेंट वैल्यूज़, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स लिख दूँ सीधा, प्रिंट स्टूडेंट Yeah. डेटा ऐसे लिख दूँ, क्योंकि ये मेरा फंक्शन का नाम है। Yes, yes. लिख दूँ ये? नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है किधर है, ये पता नहीं चल रहा है ना इसको ये किधर है, क्योंकि इसको नहीं पता है कि ये फंक्शन आपने कहाँ लिखा है। तो हमें कोड को बताना है। ये देखो कोड बोल रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस, कि उसको पता नहीं कि आपने ये फंक्शन कहाँ लिखा है। तो हम कोड को कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन हमने कहाँ लिखा है? सो बेसिकली हमने ये फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के अंदर है ना हमारे, तो हम उसके लिए क्या करते थे, याद है? कुछ किया था पिछली बार, डॉट डॉट करके कुछ, तो याद है? नहीं, चलो Dot add or dot. या सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये फंक्शन हमारा ये स्टूडेंट के अंदर है अब, है ना? तो हम बोलते हैं इसको स्टूडेंट 0 के अंदर हमारा ये फंक्शन है। याद आया? ये पिछली बार किया था अभी जस्ट। Yeah. स्टूडेंट 0 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको डॉट करके हमने बोला प्रिंट, तो हमने सीधा इधर से प्रिंट कॉल कर दिया। तो ये बता रहा है कोड को कि कोड को पहले पता नहीं चल रहा था ना कि ये फंक्शन कहाँ पर है, तो हमने बता दिया उसको कि ये स्टूडेंट 0 के अंदर लिखा है हमने, और तुम्हें स्टूडेंट 0 की वैल्यूज़ प्रिंट करते हो। तो मैं अभी रन करता हूँ, तो ये वैल्यूज़ रन होगी। वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट इज़ रोहन 15 1 मेल। अभी मुझे और एक स्टूडेंट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी मेरे पास तो ब्लूप्रिंट है। तो मुझे क्या करना होगा? बस Another Var var dot- student one. या वैर स्टूडेंट 1। चलो हाँ ठीक है, आगे क्या बोलना होता है उसको कि Student. क्योंकि Student And market class. and the name, age. yeah, so Yeah. we write with the, let's say here, and we write what, Name, roll number. 17. Here we write roll number 2, then we write gender। Gender. ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा दूसरा स्टूडेंट रेडी हो गया। ठीक है, वी प्रिंटेड, बट अभी क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए का मैसेज आ गया हमारे पास। इधर बोल तो रहा है कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, बट अभी हमें प्रिंट करने उसके भी वैल्यूज, हमें चेक करना है कि उसको असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? Student one. Student dot one print dot student. Student one dot डॉट print Yeah. student Student data and data. या ठीक है, परफेक्ट। वी कॉल द फंक्शन उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का, ये डन। सो उसकी भी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वैल्यू ऑफ स्टूडेंट द वंस वी पास्ड। ठीक है, दिस इज हाउ लाइक आवर बेसिक फंक्शन वर्क्स। आई थिंक दिस शुड बी मोस्टली इट। अभी किसी को डाउट है? थोड़ा ज़्यादा समझ आया किसी को? थोड़ा सा 10% बढ़ा हर किसी के अंडरस्टैंडिंग में? Yes. 20. Yes, sir. Okay, great. So yeah, Garima, you can declare like hundreds of classes like this in a code। क्योंकि देखो, अगर आप let's say कोई स्टूडेंट टीचर का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको एक आपके टीचर के भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट के भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आप उस सिनेरियो में एक टीचर का क्लास बना सकते हो, एक स्टूडेंट का क्लास बना सकते हो, तो ये अलग हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज़ अनदर यूज केस सिनेरियो। So I think that was most of it for today। कल बना लेते हैं इस पोर्टफोलियो एक बार ही ना, इसके ऊपर कल रन थ्रू करेंगे और पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम हमारा कल ट्राई करेंगे ख़त्म करने। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लगता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब जगह पे। तो दैट इज़ इट। मीनवाइल एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस अगेन, क्योंकि अभी सारा चीज़ें है इधर। कल भी डिस्कस करेंगे ही वापस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉज इट बोरिंग गाइस? No, sir. Not at all. Not at all. Okay। तो आई जस्ट होप यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा। तो आई ट्राई टू मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव एंड फन। वैसे आई डोंट नो व्हाई आफ्टर गेटिंग दिस माय brain feels like Einstein's brain। Yeah। No questions, sir. The session for today is awesome. Perfect. Okay, glad you guys liked it। So I think we can wrap it up here then, guys।
let's meet tomorrow for our portfolio app. Yeah, tomorrow is gonna be fun. You guys gonna do it, and I'm so proud of you all that you were able to follow through. And you guys should be also proud of yourself, because this is not an easy topic. Like people struggle.